Dislocation. What is this condition shown in this diagram? Of the greener The Dislocation of glenohumeral shoulder joint. Okay. Dislocation of shoulder joint. Now, Subluxation of radius head. subluxation. Okay. So by the end of the lecture, we will be seeing what are the differences and the causes of these conditions. Okay, ji? So last lecture was we discussed about the joints, type of joints. So can anyone describe or define the synovial joint? What is a synovial joint? The joint Is it- cavity having Joint with synovial cavity? fluid in the Is it synovial membrane. right? Movable or not movable? Movable joint. movable diaphragm. Movable and diarthrosis. And what are synarthrosis? Immobile joints. Immobile. So when we classify the synovial joint in the subcategories, there are multiple criteria. One is depending on the complexity of the joint. The other is the range of movement or the freedom of movement the joint has. And the last is the shape of the articular surfaces. So depending on the complexity का क्या मतलब होगा? Okay, depending on the number of the structures which are involved in the formation of the joint. So for simple joint, only the two bones are connected to one another. In compound joints, there are more than two structures or bones involved, and in complex there are multiple structures. Example हम आगे देखेंगे. Simple joint वो होगा जिसमें convex and concave surfaces of the bones are involved or दो bones are involved in. For example, shoulder joint. Then there is a compound joint. Both these diagrams or the images show the simple joint in which one surface is convex and the other is concave, fitting it to one another. The example of the simple joints are shoulder joint, and the other one is the metacarpophalangeal joint. Carpometacarpal and metacarpophalangeal joints. Okay, so these two are the main examples of simple joints. If we talk about the complex joint, then there are more than two bones that are involved. The example is the elbow joint. इसमें कौन-कौन सी bones involved हो रही हैं? Humerus on the upper side and radius and ulna distally. So these three bones connect to form a compound joint, and the example is elbow joint. Then third category, depending on the complexity, is the complex joint. अब complex joint वो होता है जिसके अंदर कोई articular disc या menisci आ जाएगा that would divide the single joint cavity into further parts, subparts. Examples में sternoclavicular joint, ठीक है जी, इसमें articular disc आपने पढ़ी थी that divides the joint cavity into two. Similarly, knee joint जब आगे हम lower limb में पढ़ेंगे तो वहाँ पे menisci आ जाएंगे. These are the C-shaped cartilaginous discs that provide or make the surface more concave for the articulation of the joint and the knee joint stability. So these are the compound joints. So depending on inferior radioulnar joint भी complex में आएगा. inferior radioulnar कैसे complex होगा? और उसमें भी तो articular disc होती है. Articular disc inferior radioulnar में कहाँ पे होती है बच्चा? वो तो directly lower end of ulna और radius आपस में connect हो रहे होते हैं. Joint cavity एक होती है, ज़्यादा होती हैं? एक ही होती है. अच्छा जी. उसके बाद depending on the degree of freedom of movement अगर हम बात करते हैं, so there are the joints
जहाँ पे दो मूवमेंट्स होंगे एंड दैट विल बी हैविंग अ सिंगल एक्सिस, इसको हम कहते हैं यूनिएक्सियल जॉइंट। फिर जहाँ पे चार मूवमेंट्स होंगी और दो इसके एक्सिस होंगे, दैट इज बायएक्सियल। एंड व्हेन देयर आर मोर देन 4 टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स अकरिंग एट अ सर्टेन जॉइंट, दैट विल बी मल्टीएक्सियल। एग्जांपल्स यूनिएक्सियल में मूवमेंट कौन कौन सी होंगी और इसकी एग्जांपल कौन सी होगी? pivot joint, flexion extension. पिवट जॉइंट, फ्लेक्शन, रेडियल जॉइंट होगा। इसके बाद जो है दैट इज एल्बो जॉइंट, दैट इज आल्सो हैविंग फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, दैट इज अच्छा जी। उसके बाद आगे हम बात करते हैं बायएक्सियल की, जिसमें दो से ज्यादा मूवमेंट हो रही है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन एडक्शन एबडक्शन। एग्जांपल वाज द रिस्ट जॉइंट। एंड मल्टीएक्सियल आर द शोल्डर जॉइंट एंड द हिप जॉइंट, जहाँ पे इसी तरह फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट है जहाँ पे मूवमेंट 4 से ज्यादा हो रही हैं, दैट आर हैविंग मोर देन 2 एक्सेस, सो दे आर द मल्टीएक्सियल। अच्छा जी। supination में सिर्फ फ्लेक्शन और एक्सटेंशन ही दो मूवमेंट्स हो, या फिर उसके अलावा भी अगर एक मूवमेंट हो, जैसे सुपिनेशन और प्रोनेशन होती है? कोई भी सिर्फ दो मूवमेंट्स अगर हो, सुपिनेशन प्रोनेशन हो सकती है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन हो सकती है, मीडियल या लैटरल रोटेशन हो सकती है, सिर्फ दो मूवमेंट्स होंगी, सो दैट इज यूनिएक्सियल, क्योंकि दो मूवमेंट्स का एक्सेस एक होगा। यहाँ पे मूवमेंट ज्यादा होंगी, उनके एक्सेस चेंज होते जाएंगे। यहाँ पे अगर आप लेफ्ट अपर डायग्राम में देखते हो, सो दिस इज अ रेडियल जॉइंट और यहाँ पे मूवमेंट हो रही है सुपिनेशन एंड प्रोनेशन, ठीक है, एंड द एक्सेस वाज वर्टिकल। अगर आप बात करते हो रिस्ट जॉइंट की, तो वहाँ पे मूवमेंट्स 4 थी, फ्लेक्शन एक्सटेंशन एडक्शन एंड abduction. So these 4 movements have 2 axes, making it biaxial joint. ठीक है जी। उसके बाद this lower one is the shoulder joint and the number of movements are 6, so that will be multi-axial joint. ठीक है जी। फिर उसके बाद हमने वेराइटीज की बात की थी कि साइनोवियल जॉइंट के आगे सब वेराइटीज थी डिपेंडिंग ऑन द शेप ऑफ द आर्टिकुलर सर्फेसेस। ठीक है जी, उसको हमने कहा था so these are the varieties of अच्छा variety of synovial joints में depending on the shape of the articular surface प्लेन जॉइंट्स आएंगे जहाँ पे दोनों आर्टिकुलर सर्फेसेस प्लेन है और उसमें सिर्फ स्लाइडिंग मूवमेंट्स हो रही हैं। फिर उसके बाद हिंज जॉइंट आएगा, वहाँ पे फ्लेक्शन और एक्सटेंशन थी। पिवट जॉइंट में सर्कुलर मूवमेंट्स आ रही हैं, एग्जांपल्स में आ जाएगा रेडियल जॉइंट्स थे, नेक में आ जाएगा ऑक्सीपिटो एक्सियल जॉइंट, अटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट, ठीक है। फिर कॉन्डोलाइट में, ये कॉन्डाइलर वैरायटी में हमने कहा था नी जॉइंट एग्जांपल की थी। फिर एलिप्सॉइड एग्जांपल थी रिस्ट। सेटल में हमने कहा था कि जी दैट वाज फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल एंड द बॉल एंड सॉकेट वैराइटीज में 2 मेन जो जॉइंट्स हैं व्हिच आर द हिप जॉइंट एंड द नी जॉइंट। यहाँ क्या आप देखते हो कि जी the 2 articular surfaces are flat, ठीक है, between the intercarpal intertarsal bones, so these are the plane variety of synovial joint। फिर जो wrist joint है वो condylar variety में भी आ सकता है और ellipsoid variety में भी आ जाएगा, ठीक है जी। फिर उसके बाद hinge की अगर हम बात करते हैं तो trochlear elbow joint। saddle variety में हमने कहा था first carpo metacarpal joint। पिवट जॉइंट अगर अपर लिम्ब की हम बात करते हैं तो वहां पे हमने कहा था सुपीरियर रेडियल जॉइंट भी हो सकता है और इंफीरियर भी हो सकता है। और जो बॉल एंड सॉकेट वैरायटी है उसमें हिप जॉइंट आ जाएगा, शोल्डर जॉइंट में आपने जो पढ़ा वो दैट वाज बॉल एंड सॉकेट वैरायटी। जब मुकद्दस बच्चे अटेंडेंस का पूछ रहे हो तो ये ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो रही है, सो दैट यू नीड नॉट टू वरी अबाउट द अटेंडेंस। जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उनके ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड आ रहा है। अच्छा जी।
उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जी जॉइंट की स्टेबिलिटी किस फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होगी, जॉइंट को स्टेबल कौन करेगा, शेप एंड साइज ऑफ द आर्टिकुलर सरफेस, कि जितनी ज़्यादा उसकी कॉन्वेक्स कॉरस्पॉन्डिंग सरफेस एक दूसरे के अंदर फिट इन होंगी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। जिस तरह अगर आप बॉल एंड सॉकेट वैरायटी करते हो तो उसमें आर्टिकुलेशन ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। इसी तरह अगर प्लेन जॉइंट्स में करते हो तो वहाँ पे स्टेबिलिटी कम हो जाती है। The second factor that is involved in the stability of the joint is the tone of the muscles. जितने मसल स्ट्रांग होंगे उतना जॉइंट स्टेबल होगा, जितने मसल वीक होंगे उतना जॉइंट अनस्टेबल होगा। Similarly, the ligaments of the joints, depending on the strength of the ligaments and the area covered, that also provide help in the stability of the joint. ठीक है जी। फिर अगर हम उसके स्ट्रक्चर देखते हैं कि एक साइनोवियल जॉइंट हम कहते तो उसको रहते हैं कि जी जिसके अंदर कि कौन कौन सी चीज़ें, पहले आर्टिकुलर सर्विसेज क्या क्या होंगी, उनकी कवरिंग्स क्या क्या होंगी, लिगामेंट सपोर्टिंग क्या होंगे, वो वन बाय वन हम उसको देखते जाएंगे। अगर हम आर्टिकुलर कैप्सूल की बात करते हैं तो इसको फाइब्रस लिगामेंट भी कह सकते हैं, कैप्सूल भी हो जाता है, ठीक है। दैट इज अ शीट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट कनेक्ट्स द मार्जिन्स ऑफ आर्टिकुलर सरफेस, कि आर्टिकुलर सरफेस के अंदर जॉइंट कैविटी के बोन्स को स्टेबलाइज कर देगा। फिर साइनोवियल कैविटी इसके अंदर एक आ रही है, बिटवीन द कैप्सूल साइनोवियल मेम्ब्रेन ऑन वन साइड एंड द बोन ऑन द अदर साइड, और इस कैविटी के अंदर साइनोवियल फ्लूइड आ जाएगा, ठीक है। सो दैट इज अ साइनोवियल कैविटी फिल्ड बाय साइनोवियल फ्लूइड। फिर उसके बाद अगर कैप्सूल की बात करते हैं तो उसमें नर्व्स इनोवेशन होगी कैप्सूल की, या ब्लड सप्लाई होगी, या कुछ भी नहीं होगा। कैप्सूल की अपनी ब्लड सप्लाई होगी या नहीं होगी? Does the capsule is supplied by the direct branches of arteries or not, and their innervation? अच्छा जी, कि आर्टिकुलर कैप्सूल जो उसके बाहर की तरफ है उसमें ब्लड वेसल्स भी होंगी, नर्व्स इनोवेट भी करेंगी, ठीक है। साइनोवियल कैविटी के अंदर जो फ्लूइड है दैट इज अ सिंपल सर्कुलेटिंग फ्लूइड जो कि सर्कुलेट करेगा, उसको लुब्रिकेट करेगा, शॉक एब्जॉर्बर करेगा। फिर आ जाती है आर्टिकुलर कार्टिलेजेस। These are the type of hyaline cartilage that are covering the articular surfaces, ठीक है जी। उससे फायदा क्या होगा कि एक तो वो थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग लेयर है जो बोन्स को आपस में इनडायरेक्ट कांटेक्ट या फ्रिक्शन में आने से प्रिवेंट करेगी, प्रोवाइड्स इजी मोबिलिटी ऑफ द जॉइंट, एंड अगेन अ थिक लेयर है 4 to 5 मिलीमीटर और up to 7 मिलीमीटर, तो उसकी वजह से एक वेट बियरिंग एक्शन आज कुशन इफेक्ट आ जाएगा। फिर साइनोवियल फ्लूइड की हमने बात की, क्लियर विस्कस फ्लूइड है जो सर्कुलेट करेगा और लुब्रिकेट करेगा। फिर लिगामेंट्स जो हैं, दीज आर द बैंड्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं? जॉइंट के अंदर भी हो सकते हैं और बाहर भी हो सकते हैं, ठीक है। जो अंदर हैं दे विल बी वीकर एज कम्पेयर टू द आउटर वन एंड दे प्रोवाइड द स्टेबिलिटी। फिर उसके बाद हमने ये बात करनी कि जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है, मेनिस्काई की हम बात करेंगे आगे, these are not innervated by the nerves and do not have the blood supply. तो इनकी में न्यूट्रिशन जितनी भी है वो सारी की सारी साइनोवियल फ्लूइड से डिफ्यूजन के थ्रू आएगी, that will not be by the blood vessels. सिर्फ जो कैप्सूल है, जो आर्टिकुलर कैप्सूल है बच्चे, that is also a thin sheet of connective tissue, fibrous connective tissue, which is a dense one. Dense fibrous connective tissue is an example of the articular capsule as well. अच्छा जी। फिर अगर नर्व्स और ब्लड वेसल्स की हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक हिल्टन्स लॉ पढ़ोगे आगे। वो क्या होता है कि जी जो कोई भी जॉइंट है दैट इज इनोवेटेड बाय द नर्व्स, जो नर्व उसको क्रॉस करेगी उसके सराउंडिंग मसल्स को भी सप्लाई करेगी और उस जॉइंट को भी आर्टिकुलर ब्रांचेस देगी। फॉर एग्जांपल इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द एल्बो जॉइंट, तो इसके इर्द गिर्द से
कौन कौन सी नर्व्स पास करती हैं? अल्लर नर्व भी पास, ठीक है, मीडियन नर्व। तो ये नर्व्स जो हैं ये आर्टिकुलर ब्रांचेस भी देंगी जॉइंट को, और इसके साथ साथ जो मसल्स इस जॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं उनको भी इनर्वेट कर देंगे। ठीक है, कि अगर मस्कुलोकुटेनियस की बात करते हैं तो वो आर्म मसल्स को कर रही है, ब्रेकियालिस को कर रही है। ठीक है, उसके बाद अगर आप मीडियन नर्व की बात करते हो तो प्रोनेटरीज और इन मसल्स को सप्लाई करेगी। अल्लर नर्व जो मीडियल साइड के मसल्स हैं उनको करेगी। तो ये हिल्टन्स लॉ इज दैट। ठीक है जी, मूविंग अहेड, these are the structures which are seen or present in the synovial joint. अच्छा जी, यहाँ पे आप देखते हो सबसे बाहर अगर हम देखते हैं these are the fibrous joint capsule आ गया, जो कि band of connective tissue है, dense connective tissue है। फिर ये सेंटर में कैविटी आ गई, कैविटी के मार्जिन्स पे और इनर सरफेस ऑफ द कैप्सूल पे synovial membrane अटैच्ड है। फिर जो बोन्स के कवरिंग सरफेस है विच इज इन कनेक्शन टू वन अनदर, इनके ऊपर एक लेयर ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज आ जाएगी विच इज आल्सो कॉल्ड द आर्टिकुलर कार्टिलेज। इसका फायदा क्या होगा? इट प्रिवेंट्स द फ्रिक्शन ऑफ द बोन्स, इजी लुब्रिकेशन एंड मूवमेंट करवाएगी, शॉक एब्जॉर्बर होगी। ठीक है जी, उसके बाद इसकी अपनी को ब्लड सप्लाई या नर्व सप्लाई कार्टिलेज की नहीं होगी, सिर्फ कैप्सूल की नर्व सप्लाई या ब्लड सप्लाई होगी, आर्टिकुलर कार्टिलेज या मेनिस्काई की नहीं होगी। फिर कुछ synovial में ये जो synovial membrane of the joints है that can extend into the surrounding bursas or the bursas can be separate one। ठीक है जी, उसके बाद लिगामेंट्स की हमने बात की थी कि वो उसके अंदर भी हो सकते हैं और बाहर भी हो सकते हैं। सो अगर हम हेड जब आगे पढ़ेंगे तो लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर आएगा, दैट इज इंट्राकैप्सुलर, और जो बाहर ग्लीनो ही शोल्डर जॉइंट में जैसे ग्लीनो इंट्राकैप्सुलर था, बाकी एक्स्ट्रा कैप्सुलर थे। ठीक है, सो ये हमने बात कर दी कि जी बर्सस क्या हैं। दीज आर द fibrous sacs lined by the synovial membrane and filled with the synovial fluid। ठीक है जी, tendons क्या होते हैं which are connecting the muscles to the bones, और ligaments जो हैं वो क्या करेंगे? bone to bone connect करेंगे। अच्छा जी, ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद आगे हम जाते हैं कि जी और इसके अलावा कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं जो बोन्स को स्टेबलाइज करेंगे, जॉइंट्स को स्टेबलाइज करेंगे। फैटी पैड्स, फैट के कुशन्स आ जाएंगे, वो भी कुशनिंग अफेक्ट करेंगे, जॉइंट इंजरी को बचाएंगे। मेनिस्काई डिस्क्स हैं जो आर्टिकुलर सरफेस को कनकेव करेंगी ताकि आर्टिकुलेशन ज़्यादा अच्छी हो सके। बर्सस का अपने शोल्डर जॉइंट में पढ़ा था, उस फायदा क्या था कि इट प्रिवेंट्स द फ्रिक्शन बिटवीन द बोन एंड द मसल, इन्फ्लेमेशन को बचाते हैं। और जो फाइब्रस टेंडन शीथ थी वो टेंडन को इंजरी से या रप्चर से बचाती है। ठीक है, कि अगर नी जॉइंट का इंटरनल भी हो तो यहाँ पर दीज आर द मेनिस्काई, दो लेटरल साइड पे भी होगा, मीडियल साइड पे भी होगा। उसके साथ में एक क्रॉसिंग करते हुए दो लिगामेंट्स विच आर कॉल्ड द इंटीरियर एंड द पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट्स। अच्छा जी, उसके बाद अगर ये स्पेसिमेन की पिक्चर आ जाती है, ठीक है, तो यहाँ पर पोस्टीरियर में हम देख रहे हैं तो पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट सबसे पहले नजर आएगा, फिर मेनिस्काई विच आर द सी शेप कार्टिलेजिनस डिस्क्स हैं। ये दो सी शेप जो है एक लेटरल साइड पे होगी, एक मीडियल साइड पे होगी। ये दोनों मेनिस्काई हैं, सी शेप्ड हैं और कर क्या रही हैं कि दे आर प्रोवाइडिंग डेप्थ और कनकेविटी टू द आर्टिकुलर सरफेस। और इसी तरह जॉइंट के अंदर ये लिगामेंट्स, इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट एंड पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। ठीक है जी, और जो मसल्स और बोन के दरमियान में साइनोवियल शीट और साइनोवियल फ्लूइड फिल्ड एरियाज हैं, दीज आर द बर्सस, जो लोकेशन वाइज इनके नाम आएंगे। दे प्रिवेंट द फ्रिक्शन बिटवीन द मसल टेंडन एंड द बोन्स ड्यूरिंग मूवमेंट। अब आगे हमने देखना है कि जी साइनोवियल जॉइंट में मूवमेंट्स कौन कौन सी होंगी। ठीक है, जो मेनली हमने किया
जो अगर हम मल्टी एक्सिल की हम बात करते हैं तो उसमें फ्लेक्शन एक्सटेंशन था, एडक्शन एबडक्शन थी, मीडियन एंड लैटरल रोटेशन थी, ठीक है। अब प्लेन वेराइटी जहाँ पर आएगी उसमें ग्लाइडिंग मूवमेंट होगी कि बोन्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेंगी। उसके बाद फ्लेक्शन की हमने बात की थी कि when two surfaces come close to one another, एक्सटेंशन हमने कहा था कि when two surfaces move away from each other। एंगल कितना ज़्यादा आप जिक्र ना करें तो बेहतर है क्योंकि वो डिफरेंट एंगल जॉइंट्स पे उसकी वेरिएबिलिटी है, ठीक है। एबडक्शन इज द मूवमेंट अवे फ्रॉम द मीडियन प्लेन और एडक्शन जो कि दैट इज मूवमेंट टुवर्ड्स द मीडियन प्लेन, ठीक है। और इनका एक्सेस वर्टिकल हो जाएगा। सर्कमडक्शन हमने कहा था कि कलेक्शन ऑफ 6 मूवमेंट्स जो हैं, ठीक है जी, जो कंबाइंड जब होंगी तो उसको हम सर्कमडक्शन कहेंगे, ठीक है। एंड दैट इज मूवमेंट्स इज इन द फॉर्म ऑफ अ कॉनिकल और द कोन। फिर रोटेशन की अगर हम बात करते हैं तो मीडियल और लैटरल रोटेशन की हमने बात की थी, इसका एक्सेस वर्टिकल हो जाएगा। सुपिनेशन प्रोनेशन इज आल्सो अ रोटेटरी मूवमेंट। फिर और जो जॉइंट्स आएंगे, जो टेम्पोरामेंडिबुलर जॉइंट है जॉ बोन के साथ, उसमें प्रोट्रैक्शन रिट्रैक्शन की मूवमेंट्स आएंगी, वो भी हम आगे देख लेते हैं, ठीक है। प्रोट्रैक्शन रिट्रैक्शन है, एलिवेशन है, डिप्रेशन है। अच्छा जी, अगर यहाँ पे हम बात करते हैं हैंड की, तो जो एडक्शन एबडक्शन है दैट इज occurring at the wrist joint, और उसके साथ साथ जो कार्पल बोन्स हैं उनके ऊपर, क्योंकि प्लेन जॉइंट्स बन रहे थे वहाँ पे ग्लाइडिंग मूवमेंट्स आएंगे, ठीक है। फ्लेक्शन हमने कहा था कि when two surfaces move close to one another, और एक्सटेंशन वो होगी जहाँ पे मूवमेंट अवे फ्रॉम आ जाएगी। फिर उसके बाद और इससे दूर जाएंगे तो एशन। इसके जॉगिंग मूवमेंट्स की एक चीज़ यहाँ पे अभी ये देख लो कि जी जो रिस्ट जॉइंट पे कंफ्यूजन आ रही थी कि दैट हैज सर्कमडक्शन। सो अगर इस तरह की कॉनिकल मूवमेंट होगी तो सर्कमडक्शन है, और अगर सर्कुलर मूवमेंट नहीं बनेगी स्पेसिफिकली एट द जॉइंट, सो दैट वुड बी नॉट अ सर्कमडक्शन। जब हमने वैरायटी की बात की थी, ठीक है, कि there was 7 varieties of the synovial joint। तो अगर हम बॉल एंड सॉकेट की बात करते हैं तो ये चीज़ है कि सर्कुलर हेड ऑफ द, अगर शोल्डर जॉइंट में ह्यूमरस की बात आएगी और लोअर लिम्ब में हिप जॉइंट की जब बात करेंगे तो फीमेल का हेड आएगा, ठीक है। कि अगर हम शोल्डर जॉइंट की बात करते हैं बॉल एंड सॉकेट वैरायटी में, so these are the ball and socket, एलिप्सॉइड या कॉन्डिलाइट की वैरायटी की हम बात करते हैं, दिस वाज द रिस्ट जॉइंट, ठीक है, जिसमें these movements are occurring around the articular surfaces। जी जो पिवट जॉइंट की हमने बात की थी कि जिसमें जो रोटेटरी मूवमेंट्स हो रही हैं, ये एटलांटो एक्सियल जॉइंट है बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड सर्वाइकल वर्टेब्रा, ठीक है। और इसके साथ में अगर रेडियो अल्नर की जॉइंट की हमने बात की तो यहाँ पे ये सुपिनेशन एंड प्रोनेशन मूवमेंट्स दीज आर अकरिंग एट द जी वर्टिब्रा सर्वाइकल वर्टिब्रा में कौन सा जॉइंट है?
pivot joint है and that is having a rotatory movements. Pivot variety of synovial joint. ठीक है, अच्छा जी. और अगर हम rest of the movements हम देखें, अच्छा जी, अगर हम मैंडिबल की बात करते हैं तो यहाँ पे एलिवेशन और डिप्रेशन की मूवमेंट होनी है. ठीक है, अच्छा जी. Upward movement elevation and depression of mandible, ये दो movements हैं. ठीक है, and these are occurring in the temporomandibular joint. इसी तरह protraction and ठीक है जी. अच्छा जी, प्रोट्रैक्शन फॉरवर्ड मूवमेंट है और रिट्रैक्शन वापस की तरफ आना है. बैकवर्ड मूवमेंट इज रिट्रैक्शन एंड फॉरवर्ड मूवमेंट इज प्रोट्रैक्शन. इसी तरह जो रोटेटरी मूवमेंट्स हैं, these are occurring at the atlantoaxial joint. ठीक है, so these are the rotatory movements. फोर आर्म की प्रोटेक्शन और रिट्रैक्शन की बात करते हो, प्रोनेशन एंड सुपिनेशन. ठीक है जी, सो दिस इज द प्रोनेशन मूविंग बैकवर्ड्स and supination is the turning back into the anatomical position. These are supination, pronation. Flexion of the digits, if we talk about, this is the extension at the metacarpophalangeal and interphalangeal joint, and this is the flexion. And we lastly opposition movement, when the thumb moves towards the little finger in the median plane. So this is the opposition. The medial movement would be adduction and outward movement would be abduction. So ये आपने कहा था कि दिस इज स्प्रेन, तो होगा क्यों? When there is excessive inversion of the movement of at ankle joint, ठीक है, तो उसमें जो ये ligaments हैं इनकी अपनी tensile, the flexion is more than the tensile strength of these ligaments, so these will get torn apart. So there are 3 grades or 3 degrees. Initially there is a inflammation, partial tear and the complete tear. So when these ligaments tear apart, they cause the inflammation, swelling and redness in the joint, and the movement is compromised. So this is a sprain at the ankle. Then is the dislocation of shoulder. So dislocation is the slipping away of the bone from the articular areas or surfaces. Okay. Regarding the shoulder joint, it can be anterior dislocation or posterior dislocation. And here there is a subluxation. So the last question is, what is the difference between dislocation and subluxation? Inferior dislocation को subluxation कहें. Anyone else? In dislocation, there is complete outward movement of the bone, while in subluxation, there is incomplete or partial dislocation. Right. Anyone else? सर क्वेश्चन रिपीट करते हैं. What is the difference between subluxation of the joint or the dislocation of the joint?
फिर subluxation partial subluxation में जो है वो अभी भी और जो दो partial extension contact में रहते हैं। incomplete जी अच्छा, subluxation is the partial सही। और अच्छा आप सर मैं भी यही कह रही हूँ कि पार्शियल डिसलोकेशन होती है और अभी भी बोन्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्शन में होती हैं। डिसलोकेशन में सर डिसलोकेशन में कंप्लीटली मतलब अलग हो जाती हैं एक दूसरे से बोन्स। सही। So you have to remember this difference between the two कि subluxation जो है partial tearing of ligament है, the bones are still in the localized area but displaced, ठीक है। Whereas in this dislocation the bone completely moves out of its articular socket or cavity, so that is the difference between the two. Subluxation आपने children में पढ़ी थी for elbow joint, and dislocation of joint is commonly in adults. If you have any question, let me know. एक्सक्यूज मी सर, जी सर जो जॉइंट्स पर मूवमेंट होती है उसका जो एक्सेस होता है सर, उसकी सर समझ नहीं आती। जी एक्सेस इज एट 90 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर सुपिनेशन और प्रोनेशन की हम बात कर रहे हैं, सो एनाटॉमिकल पोजीशन में रखते हुए, सो दैट इज द मीडियल एंड लैटरल रोटेशन ऑफ द फोरआर्म, और उसके 90 डिग्री विल बी द वर्टिकल वन। इसी तरह जो अगर आप शोल्डर जॉइंट की बात करें तो उसमें मीडियल और लैटरल रोटेशन, so that is again in the medial and lateral plane in the horizontal plane, and the axis would be vertical. सर जो आपने बताया था कि जो ऑपोजिशन ऑफ थंब होता है वो मीडियन प्लेन में होती है, ठीक ठीक। तो सर वो कैसे होगा? Position towards the median plane of the hand, ठीक है। कि अगर फिंगर्स की हमने बात की थी, एडक्शन और एबडक्शन की, तो मिडिल फिंगर के अगेंस्ट सारे फिंगर्स मूव कर रही थी, लेकिन मिडिल फिंगर रिमेन्स स्टैटिक, सो दैट इज द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द हैंड, ये मीडियन प्लेन ऑफ द हैंड, ठीक है। तो उसके तरफ मीडियन प्लेन की तरफ, let me show you again. यहाँ आप देखते हो कि सेंट्रल एक्सिस इज द मिडल फिंगर, ठीक है। तो so this is the movement towards the median plane of both the thumb and the little finger, और अगर हम सेंट्रल एक्सिस रख रहे हैं मिडल फिंगर को तो इसके तरफ आ रही है, so that is opposition. Any other question? सर partial and complete dislocation of elbow joint explain कर दें। Complete dislocation of elbow joint mostly in adults होगी, ठीक है, when there is a rupture of the articular capsule and the annular ligament, और younger age group में or in children dislocate, that is a slight dislocation of the head of radius from the annular ligament, ठीक है, slipping off the head of radius, that is subluxation. तो सर पुल्ड एल्बो में सबलक्सेशन होगी? Pulled elbow में subluxation होगी if it is in children, and if it is in adult then it would be dislocation. Excuse me sir, जी केस के जो एम्ब्रियोलॉजी और हिस्टोलॉजी के टेस्ट होने हैं उसमें कितने कितने एमसीक्यूज आएंगे, उसका कितना टाइम होगा, और हिस्टो कब आएगा, कितने मार्क्स का होगा, ये प्लीज थोड़ा बता दें। इसका पैटर्न आपको इंशाल्लाह कल सुबह तक हम बता देंगे, and most probably it will be converted as viva only. That would be on Monday and Tuesday. ठीक है। एलिप्सॉइड और कॉन्डोलाइट में फर्क ये बच्चा है कि एलिप्सॉइड की हम बात ही कर रहे हैं कि दैट इज एन आर्च, आर्टिकुलर सरफेस एंड द आर्च शेप, ठीक है। सो ब्रॉडली अगर हम बात कर रहे हैं तो रिस्ट जॉइंट को
proximally radius and distally the 3 carpal bones that are in the form of an arc, so that is ellipsoid. और अगर हम lower surface of radius को individually देखें तो वहाँ पे 2 surfaces बन, there are 2 surfaces that are being formed on the articular areas similar to the condyle. लेकिन condyle को most common example should be the knee joint. Any other question? सर जी The metacarpophalangeal joint condyloid variety. Metacarpophalangeal is Condyloid variety है ये वाली. condylite नहीं है. Sir, wrist or knee condyloid है? This joint is categorized as condylite as well as ellipsoid. And knee? Knee joint is condylite variety as well as there is a modified hinge because it has a medial and lateral rotation as well. Allah Hafiz.